आर्यन भूमिका सेन Present, sir. पलक Present, sir. कुमार अंसज खुशाल साहू साक्षी मुस्कान बंसल शिता Present, sir. स्वास्तिक मुस्कान बंसल is present. Unnati and Harshvardhan. Anybody left? Yes, Vida. Now we are going to start our Sir, Unnati present. Unnati and Harshvardhan. Both are present, Vida. So we are going to start. Muskan, सर मेरा नाम नहीं आया सर। name beta. आर्यन सिंह शेखावत। Okay, beta. Just Aryan and Muskan. Okay, beta. Okay. Yes, students. Just listen to me. We have completed our 2 units, MySQL and networking concept. From last 2 class, we have started with Python. So in this of you, we are getting the knowledge about the basic of the Python. बेटा जब हम थोड़ा सा आप 11th क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप 12th को आप करोगे, क्योंकि पाइथन जो है, पाइथन की जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं बेटा, so we have to require the basic of the Python. Okay, so what is topic is going on? Data type. Okay, in last class we have studied about the what is the Python. Now we will start with the data types. सर Yes, sir. सर डायनामिक टाइपिंग क्या होता है? Dynamic type means beta, just on your video all of you at first. Dynamic type language, Python is a dynamic type language. बेटा जनरली क्या होता है कि हम C की बात करते हैं, C++ की बात करते हैं, जावा की बात करते हैं, तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअली क्या होता है कि जो भी उन वेरिएबल को डिक्लेरेशंस करते हैं वो कंपाइल टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हम जो है वेरिएबल का डिक्लेरेशन रन टाइम मीन्स डायनेमिकली भी हम कर सकते हैं, डायनेमिकली मीन्स रन टाइम पे भी हम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। ओके, and we have already explained the why is we call Python is a object oriented programming language, because it support the class object. Okay, overloading. And why we call Python is an open source language, we have already explained. Okay, now Yes, we are going to start. Mute कर लो आप, one or two स्टूडेंट्स का शायद प्रॉब्लम है। Yes, beta. Now, data type in Python. So I have already classified in Python data type. Okay. First is integer, then float, then list, then dictionary, then set, then Trojan set.
Okay, all are the Python data type. Okay, clear? Now we are going to start with the integer. Integer means just 0 to 9 numbers. I am writing the x equals to 10 and y equals to 5. Okay, clear? Uh, Give me the answer about the arithmetical operators. Yes, anybody want to give the answer? Man Agrawal, arithmetical operators. सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है. Just let me check. Now voice is clear, beta? यस सर. Yes. Yes, beta. Man Agrawal, give me answer. सर इक्वल्स टू इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर दिया. All type of arithmetical operator. We will apply na on integer. यस The सर. name of the arithmetical operators, which sign will be included in arithmetical operator. सर प्लीज रिपीट. Hmm? Yes, beta. What happened, beta? Sir, may I? Yes, beta. Sir, addition, subtraction, multiplication, Yes, it's the division, normal answer, beta. exponents. Yes, beta. So integer, then we can apply on the integer all type of the arithmetical operators, addition, subtractions, multiplications, division. Okay. तो हम ये चेक करेंगे कि प्लॉट में अप्लाई हो रहा है, लिस्ट में अप्लाई हो रहा है या डिक्शनरी में अप्लाई नहीं हो रहा है, कि कौन सा arithmetical operators या कुछ अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं, और हमें किस तरह से हमें आंसर्स मिलते हैं. यस बेटा. तो x plus y, we will get the answer. Okay, and we can apply the x minus y. Yes, we can apply. And how? Yes, x into y is all of you on your video. X into y is possible or not? तो ये Possible, sir. अभी इंटीजर के केस में ये सभी पॉसिबल होंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ये करते हुए हैं, लेकिन जब हम लिस्ट और डिक्शनरी पे डिपेंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह चेक करेंगे, तो उसमें फैक्ट ज्यादा दिखेंगे. ठीक है, इट इज पॉसिबल. एंड जस्ट आई एम आस्किंग एक्स डिवीजन बाय, व्हाट इज द डिवीजन बिटवीन yes Sir, may I? yes beta, what is difference between float division and normal division? Sir, float division में sir decimal value नहीं आती. और ये देखो बेटा, तीनों आपको थोड़ा सा सेम लग रहे हैं, बट तीनों में डिफरेंस है. तो हु विल गिव मी आंसर? उन्नति, अनन्या, अनामिका, परिधि, व्हाट इज द डिफरेंस? Sir, float में sir decimal values नहीं आती हैं. And third is x modular sign y means
सर वो रिमाइंडर देता है x डिवाइडेड y का। yes beta it will give us remainder। तो जनरली बेटा ये जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, जो भी क्वेश्चंस इस तरीके से जनरेट हो जाते हैं, है ना, जो एमसीक्यू वगैरह का है या कुछ है, तो उसमें फ्लोर डिवीजन पे नॉर्मल डिवीजन तो यू नो। अब एक और क्वेश्चंस बनता है बेटा इसमें, जस्ट आई राइट यस आई राइट x डिवाइडेड बाय y, तो यहाँ पर 2.0 आंसर आता है। तो पाइथन के अगेंस्ट में आप क्या कह सकते हो कि जो हमें जो रिजल्ट मिलता है जनरली, यदि हम यहाँ पर डिवाइड करें C++ और C++, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर जो आउटपुट होगा हमारा वो 2 होगा, बट यहाँ पर हमें आंसर जो है हमें 2.0 गेन हो रहा है। बाय फिर वो डेसिमल वैल्यू तक फाइंड करता है, तो उसमें डेसिमल वैल्यू हाँ, यहाँ पे ये 0 है, तो बाय वो फर्स्ट बाय डेसिमल तक डिफॉल्ट जो, हाँ निकालेगा। यस बेटा, ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारा, बाय डिफॉल्ट हमें जो वैल्यू प्रोवाइड करता है वो क्या प्रोवाइड करता है बेटा, दैट्स विद फ्लोट की वैल्यू के साथ हमें वो, ठीक है, विद फ्लोट वैल्यू के साथ हमें आंसर मिलता है, ठीक है। तो नंबर्स डेटा टाइप में फर्स्ट आपके नंबर्स हैं, देन आपके नन है, सीक्वेंस है, सेट है, डिक्शनरी है, फ्लोजेंट सेट ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये भी आप डेटा टाइप की कैटेगरी में। और नंबर से उसको इंटीजर में आपके डिवाइड किया गया है, फ्लोटिंग में डिवाइड किया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड किया गया है। इंटीजर को इंटीजर फर्दर वी कैन डिवाइड इनटू बुलियन नंबर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बुलियन? बुलियन डिजिट कौन कौन से होंगे बेटा? हम इसे भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट बुलियन इज, बुलियन मीन्स व्हाट यू विल चेक इन बुलियन। Anybody can give the answer? What you will check in Boolean? Anamika. Yes, sir. Yes. What you will check in beta Boolean expression से, वो expression क्या importance रखती है, क्या check करते हैं उसमें? Sir, may I? Yes बेटा. Sir, true or false? True or display होता है। false? And true को कौन सा digit represent करता है और false को कौन सा represent करता है बेटा? 0 और 1 बुलियन कांस्टेंट है आपके, तो 1 को रिप्रेजेंट कौन करेगा, या अपोजिट से बोले हैं कि हम 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, 0 और 1? Sir, 0. अदिति। अदिति बेटा। यस दीपिका। Sir, 1 true or 0 false. हाँ यस बेटा। जो आपके वैल्यू बेटा, देयर आर टू टाइप ऑफ बूलियन कांस्टेंट, फर्स्ट इज 1 एंड सेकंड इज 0। आप जब भी ट्रूथ टेबल पे आपने कभी स्टडी की होगी, आपने जब भी आपका उसमें भी हम लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशंस वगैरह यूज करते हैं, तो यहाँ पर 0 जो है आपका वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, और 1 जो है आपका वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका। जैसे अभी देखो, मैं अभी आंसर आपको एक थोड़ा सा नॉर्मल करके देखते हैं यहाँ पर। एक्स ये देखो, x ग्रेटर देन 1, ये ऑपरेटर कौन सा है आप बता सकते हो बेटा? ग्रेटर देन विच ऑपरेटर? अर्थमेटिक Logical. ऑपरेटर, लॉजिकल या Logical operator. नो। सर रिलेशनल ऑपरेटर। Yes beta, relational operator. That's why we are going to revise this basic concept of the Python. Okay. Suppose that if you have not clear your basic, you can improve. Okay. That's why we are going to revise this topic. Okay. X greater than y,
main greater than is comparison operator. Okay, relational operator, and it will give us it will check the conditions. X की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? X is 10. 10 10, and Y is 5, 5. 5 और हम क्या कर रहे हैं बेटा? X greater than Y. X greater than Y. तो यहाँ पर चेक करो बेटा कंडीशंस. कंडीशन चेक करने पर आपको इजी वे पे आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि यहाँ पर ट्रू किस बेसिस पे हमें आउटपुट मिला है. तो व्हाट गिवन फॉर x 10 एंड y, तो आपकी कंडीशन जो है कंडीशन आपकी ट्रू जा रही है क्योंकि x ग्रेटर देन है y से. यहीं पर ही हम चेक करते हैं x लेस देन y. तो व्हाट विल बी आंसर? व्हाट विल बी आउटपुट बेटा? False. 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 ओके, इज इट क्लियर? अब इसी पे हम वर्क करते हैं. x इक्वल्स टू y, व्हाट विल बी आंसर? false. फॉल्स. ओके बेटा. अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा वैल्यू को रिप्लेस यदि करता हूँ, यहाँ पर y को हम कर देते हैं 10. ठीक, देखो यहाँ पर डायनेमिक टाइप पे हम वेरिएबल को वेरिएबल जो भी है इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना. देखो यहाँ पर y, अब देखो हमारा जो है अब सब कुछ चेंज हो जाएगा. x ग्रेटर देन y. false, देखो अभी जस्ट मैंने क्या किया है बेटा, इसी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है सेकंड वैल्यू से. तो फर्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट टाइम क्या थी आपकी वैल्यू बेटा? 5, x की वैल्यू पर देखो हमने क्या दे रखी है बेटा? 10, और y क्या दे रखा है बेटा हमने? y is given 5 and x is given 10. तो यहाँ पर जब हम x ग्रेटर देन y कर रहे थे, हमें कंडीशंस क्या मिल रही थी बेटा? जो कंडीशंस मिल रही थी. बट हमने क्या किया, चेंज थोड़ा सा चेंज किया है. जो y इक्वल्स टू 5 था बेटा, उसको हमने y की वैल्यू को क्या गिवन है, अब यहाँ पर 10 हमने दे दिया है. तो y को एक तरह से जब भी हम पाइथन ये सपोर्ट करता है कि जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसमें आप किसी आप कोई वैल्यू और उसे असाइन करते हो तो वो उसे पहले वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देती है. तो हमारा जो फंक्शनिंग होगा अब वो लास्ट वाली वैल्यू से नहीं होगा कि लेटेस्ट वैल्यू लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू से होगा. इसलिए वहां पर हमारा ट्रू मिल रहा था, यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है बेटा? फॉल्स मिल रहा है. ठीक है, तो यू आर गेटिंग द आउटपुट एज अ फॉल्स. यहाँ पर अब देखो यहीं पर ही हम करते हैं x लेस देन y. ओके, क्लियर? अब ये देखो, अब आपके True. ऊपर जो किया है हमारा, अब क्या हो जाएगा? ये ट्रू, और पहले क्या था हमारा? फॉल्स. इज इट क्लियर? तो ऑल टाइप ऑफ द अरिथमेटिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर अंडरस्टूड और नॉट? yes, sir, understood. Yes beta. As greater than equals to y. Can you give me the explanation about this expressions? Y is true. अभी तक हमने क्या किया था? x greater than y. अब इस x greater than y पे हमें false मिल रहा है, बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज किया है एक्सप्रेशंस में. greater इक्वल टू साइन यूज किया है, यहाँ पर मुझे false की जगह ट्रू मिल रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? सर इसमें सर यहाँ पे दोनों इक्वालिटी भी कंडीशन होल्ड कर रही है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. हाँ, यहाँ पर कंडीशंस जो है इक्वल साइन है इसलिए सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर. और रीजन और कौन आंसर देना चाहता है बेटा करेक्टली लॉजिकली? साइन में डिफरेंस बताना है और ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. एक्सप्लेनेशंस गुड होना चाहिए. यस बेटा. अदिति, अनामिका, अदिति, अनन्या, मीनाक्षी, पलक, सान्या, स्वानी. Yes, one. Yes. Anybody want to give the answer?
वेट करने की जरूरत नहीं है, जिसको आंसर आता है जस्ट गिव मी द एक्सप्रेशन। आई हैव अनम्यूटेड ऑल ऑफ यू। अनम्यूटेड इसलिए क्या है, या ऑनलाइन क्लासेस ना होकर के आपको ऐसा लगे कि हम फिजिकल क्लास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यस बेटा, गिव मी आंसर मन। सर एक में ग्रेटर देन ही था सिर्फ, और ग्रेटर देन दूसरे में हमें ग्रेटर देन ये इक्वल्स टू है। हाँ इक्वल्स टू मीन्स है कि हमें ये चेक करेगा कि x की जो वैल्यू है वो y के इक्वल है या नहीं है। हमें देखो ग्रेटर देन हमारा क्या कर रहा था, ग्रेटर देन हमें ये बता रहा है कि जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू जा रही है वो ग्रेटर देन जा रही है पहले तो, लेकिन सेकंड टाइम पे क्या हो रहा है कि वी हैव यूज्ड द ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, मींस ग्रेटर देन तो कंपैरिजन तो ग्रेटर देन से तो करेगा ही, साथ में वो इक्वल को भी चेक करेगा। पहले तो ग्रेटर देन को चेक करेगा, तो ग्रेटर देन हमारी क्या कंडीशन जा रही है, फॉल्स जा रही है। बट सेकंड हमने साइन यूज किया हुआ है, साइन तो एक ही है बेटा, साइन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, साइन तो आपका सिंगल ही है, साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन सिंगल ही है, वो ग्रेटर देन साइन है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन है, बट एक ही साइन में दो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, एक तो इक्वल है और एक ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन चेक कर रहा है तो वो तो फॉल्स दे रहा है, बट वहां पर सेकंड जो साइन है वो इक्वल साइन भी है, तो ये चेक करेगा कि यार x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, इक्वल है या नहीं है, तो वहां पर आपको इक्वलिटी को शो कर देगा और आपको आंसर जो होगा वो ट्रू में चेक कर। Okay students, now any doubt? देखो ये हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हो गए, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ हमने यहाँ पर चेक कर लिया, आपके कंपैरिजन ऑपरेटर को भी हमने इंटीजर पे अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा हम फ्लोट पे जा रहे हैं बेटा। फ्लोट मीन्स हम वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, ए बी वेरिएबल यूज करते हैं, ए इक्वल्स टू 10 and b equals to 5.5. Yes, below. Yes, below. अप्लाई करें हम सभी अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को, a plus b will be satisfied. Okay. A minus b also will be satisfied. Okay. A getting a multiply b. ओके सभी आंसर्स आप चेक कर रहे होंगे कि जो सभी आंसर्स आपके पास आ रहे हैं वो आंसर्स में कोई प्रॉब्लम है क्या, आंसर्स आपको वही मिलेंगे, आपको फ्लोट में फ्लोट वैल्यूज में मिल रहे हैं आपको a माइनस बी, यदि हम अप्लाई करते हैं तो a माइनस बी पे भी हमारा यस स्टूडेंट्स, जो एक दो स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट कमर्स हैं, तो मुझे मैसेज कर दें कोई किसके अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है तो वो मैं आपको बता दूँ, बट यू हैव टू कम ऑन टू ज्वाइन एट 8:28 बेटा, 8:20 आप 8:28 पे ज्वाइन कर ही लिया करो, ऑफ द 5 मिनट्स बिफोर, यदि इफ यू हैव कम यू कैन ज्वाइन। ओके, लेट किसी को नहीं होना है। यस बेटा, तो ऑल आर क्लियर, यहाँ पर अप्लाई करें हम, ठीक है बेटा, आपका आंसर आउटपुट सब में गेन हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए मॉड्यूलर साइन यदि हम डिवाइडेड करते हैं यहाँ पर तो यह भी आपको कैलकुलेट होकर आ जाता है, मींस अरिथमेटिकल ऑपरेटर इंटीजर पर इजी अप्लाई किए जा सकते हैं, फ्लोट पे भी जो है इजीली अप्लाई होगा, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर वो उसी तरह से वर्क कर रहा है जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया है, वही करेगा आपका, आप जो है आपके पॉइंट्स में है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही उसी तरीके से चेक होगा जिस तरीके से इंटीजर आपका चेक हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दें कि क्या डाउट है ना, चेक वही होगा है ना, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी क्योंकि आपके दोनों चेक हो गए, यदि यहाँ पर हम लेस यूज करते हैं तो यहाँ पर
are different. Okay, beta. Now, is it clear or not? Any doubt, beta? Any questions from your side? If you want to ask, you can ask. You have any questions? Any doubt from your side? You want to ask? No questions? I want to response better here. Just give me response. मेरा नेक्स्ट टॉपिक तभी स्टार्ट होगा जब मुझे रेस्पॉन्स आप में से किसी का रेस्पॉन्स होगा. Yes, बेटा. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay, बेटा. हाँ, yes, बेटा मन. Yes, sir, clear. Okay, now we are going to with complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर आप स्टडी करते हो, फिजिक्स में भी आपने देखा होगा, मैथ्स में भी आप देखते हो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप से वर्क करते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को भी चेक करते हैं, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी हम चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है. तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखे जाते हैं बेटा, एक्स हम पहले यूज कर रखे हैं, भी यूज करते हैं, तो हम कुछ और यूज कर लेते हैं यहाँ पर, है ना. सी हम ले लेते हैं, ठीक है, और एक डी ले लेते हैं. 20 + 5j. ओके, क्लियर. एंड d = 10 + 5j. ओके, C + Z अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई करें तो क्या होगा बेटा. ओके, राइट, वी आर गेटिंग द आउटपुट C - D. तभी अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे. ओके बेटा, C × D and C divided by C short division. यस बेटा, मिला कुछ आपको, और उस पे भी हम कर लेते हैं, मॉडुलर साइन पे भी कर लेते हैं. C मॉडुलर साइन D. Yes, बेटा. Any expression from your side? Who will explain this? इंटीजर आपने चेक किया बेटा, फ्लोट आपने चेक किया, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका देखो, आपका फ्लोट डिवीजन तक सब कुछ सही है बेटा. इसके बाद आप देखिए, चेक कर रहे हो बेटा, तीनों हमने देखे बेटा, है ना, डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन, फ्लोट डिवीजन एंड देन मॉडुलस. ओके, यदि हम इंटीजर को चेक कर रहे हैं तो इंटीजर में सब कुछ क्लियर है, फ्लोट में सब कुछ क्लियर है, बट यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं जो मैं बताना है मुझे, वो आप में से कौन बता सकता है बेटा. यस, अनामिका, अदिति. बस ऑन योर वीडियो बेटा. अनामिका, अदिति, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट्स. उन्नति, ऑन योर वीडियो. अमन, उन्नति बेटा. This is not doing the calculations because of that not supported short division and modular sign in complex number. तो complex number में दोनों चीज आपके सपोर्ट नहीं हो रही है. आपके कौन सी सपोर्ट नहीं हो रही है, एक आपके उसको फ्लोट डिवीजन सपोर्ट नहीं हो रहा है, और आपका वो नहीं हो. क्यों? क्योंकि आपको पता भी चल रहा होगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर और भी हो सकते हैं. हमने तो 2 नंबर्स पे हमने कैलकुलेशंस कर रहे हैं,
यदि और में जाएंगे तो किस तरह से उसका फ्लॉ डिवीजन कैलकुलेट होगा और किस तरह से, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें किसी भी तरीके का आपका ये सपोर्ट नहीं होता है, बट जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी सपोर्ट। देखो यहाँ पर एरर से आपकी आप कर रहे हो तो कांट टेक फ्लोर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कांट टेक द मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, नाउ इसका इमेजिनरी पार्ट और हम एक बार चेक कर लेते हैं। जो हमने जो है आपका एक्स वैल्यू हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो हम सी हमारी वैल्यू क्या है 8 और डी हमारी वैल्यू है 10 प्लस, हम प्रिंट करवाते हैं एक नॉर्मल प्रिंट। हम सी का तो रियल पार्ट ले लेते हैं बेटा और हम डी का इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आप हमेशा पढ़ते हुए आए हो वही है बस इसमें। ठीक है, तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रिंग बेटा? व्हाट इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप? यस, व्हाट इज स्ट्रिंग? व्हाट इज स्ट्रिंग बेटा? Yes, who will give me answer? String. Yes, beta. Aman. Yes, beta. Sir, string is a sequence Yes, of beta. characters Yes. enclosed within single, double, or triple quotes. Yes, very good, beta. And yes, beta. यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स भी यूज नहीं किया है, ट्रिपल कोट्स भी यूज नहीं किया है। यहाँ पर मैं जब मल्टीपल हमारे वर्ड्स होते हैं या 2 और 3 लाइंस में हम लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हम आपके ट्रिपल में लो, आप डबल कोट्स में लो तो आपको एरर की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। हमने एक स्ट्रिंग बनाई है आपके, और स्ट्रिंग आपकी क्या है? आपके स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपके str यदि आप प्रिंट करवा रहे हो तो आपका str अच्छा कैपिटल, तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक str आपका एक स्ट्रिंग बनाते हैं हम, मान लिया कॉन्वेंट। ओके बेटा, अब यहाँ पर हम यदि इसको सिंगल कोट्स में लेते हैं, एक बार डबल कोट्स का ही हम अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर आपके प्रिंट करवाते हैं हम। ठीक है, और str को हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा डबल कोट स्ट्रिंग का रिजल्ट मिला बेटा। इसी तरह से आपकी सिंगल कोट स्ट्रिंग भी होती है, इसी तरह से आपकी डबल कोट स्ट्रिंग भी होती है। तो आप किसी भी तरीके से उसको रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसका सिंगल और जनरली हम सी प्लस प्लस जावा में सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग भी हम कर देते थे। यहाँ पर स्ट्रिंग जो होती थी वहाँ पर आपकी सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग, मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग होती थी, और यहाँ पर ट्रिपल कोट्स का कोई रोल नहीं होता वैसे, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल कोट्स भी पाइथन सपोर्ट करते हैं। क्लियर? देखो कि अब आपके नेक्स्ट जो डेटा टाइप है आपका लिस्ट। Understood better this topic? If you have a problem, you can ask me. Any doubt?
इस क्लास में आपको कोई डाउट है बेटा अभी? Any doubt beta? You can ask. Now we will start with next topic. Next topic is list beta. So what is the list? Yes beta. What is list beta? Who will give me answer? Aman. Paridi. Yes, Paridi. Start. So list is a collection of values or an order sequence of values Order in shows in a sequence of square bracket. and Show in square brackets. square bracket. Okay. And dictionary? Aman, what is dictionary? Aman, are you listening beta? Yes, sir. Yes. What is list? Sir, it is a collection of key and associated pairs, key value pairs, Okay. enclosed Beta, within curly how brackets. can you yes, how can you prepare your list? What is the statement for that? Just look at the screen. This is the list. List जो है बेटा, list is the collections of the items and it may be the heterogeneous means you can include you can prepare a list as a combinations of the integer float and other string value. Okay, and which type of this list? This list is the integer list because we are going to store only integer value in this list. Okay, एक मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पर आपके जिसमें इंटीजर वैल्यू है। आप एक फ्लोट लिस्ट बनाते हैं हम बेटा, L2 2.5 okay 4.6 and 12. ओके बेटा, L2 लिस्ट हम चेक कर रहे हैं इसकी। ओके बेटा, तो ये लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट देखो मेरी क्या बनी है बेटा, इंटीजर लिस्ट। सेकंड लिस्ट कौन सी है बेटा, फ्लोट लिस्ट। अब एक और लिस्ट बना के देखते हैं हम, ठीक है। Time is going to over, so in next class we will study about the how can we work with the list and dictionary. Okay, let's check L3. Okay beta, this is the list of the string list. Okay, and you can prepare a list by using the integer, float and string। आप तीनों को एक ही लिस्ट में यूज कर सकते हैं। मींस आपके हेटेरोजेनियस टाइप लिस्ट है बेटा, तो लिस्ट की डेफिनेशन में हेटेरोजेनियस, और आप ध्यान रखें जब है ना,
तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, आपके एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें चाहिए सब कंबाइंड होंगे। इक्वल्स टू हाँ यस स्टूडेंट, ये आपकी एक लिस्ट बनी है जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन है, इंटीजर वैल्यू एंड फ्लोट वैल्यू एंड द स्ट्रिंग वैल्यू। ओके बेटा, नाउ this class is going to finish. If you have a question, you can ask me, and you have to join the next class after the 5 minutes. If you want to ask the questions, you can ask me. In next class, we will study about the functioning of the how can we manipulate the list and dictionary, and how can we create a dictionary. About all the functions we will study about the list. और बेटा ये लिस्ट और जो रिवाइज है ये लिस्ट और डिक्शनरी, वो इसलिए है क्योंकि यह जो भी आप जब भी पाइथन पढ़ते हैं तो इन दोनों डेटा टाइप का काफी यूज होता है बेटा। आगे जाकर आप टपल वगैरह का भी काफी यूज होता है। सो बेटा इफ यू हैव अ क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? And beta, if you don't have any doubt, you have to study about the methods of the list and the methods of the dictionary, and how can we prepare a dictionary, and how can we iterate the data from the list. And you have to also read about the range function. Your homework is you have to read all about the list and dictionary, methods of list and dictionary, and you have to read about the range functions also. Okay, range function is the very important and we use in the loop also. Okay, and how can we iterate the list, है ना? Okay beta, so you have to. Okay, any doubt? Any doubt beta? And in next class beta, you have to read all the topics. Now we are going to finish this class. Okay beta, bye, take care all of you.